we are going to study about handling data. Before we begin with this, let us know what is data. Data, the collection of all the observations, which means the collected information is called data. Data handling, the process of gathering, recording, and presenting information in a way that is helpful to others. For instance, graphs or charts. So, the process of collecting, recording, and presenting information in such a manner that it is helpful to others is called data handling. We can represent the information with the help of graphs or charts. There are different types of graphs. Today we are going to learn about pictograph. The word pictograph itself gives us a hint. Picto means pictures. Therefore, a pictograph uses pictures or symbols to show numbers and represent information. Let's see an example. In this pictograph, we can see the names of the villages, that is village A, B, C, D and E, and the number of tractors that are there in each village. Here, the picture of a tractor is used to represent information. Let's learn more about pictograph. Parts of pictograph. There are 4 parts of a pictograph. First, title. Second, symbols. Third, key. Fourth, labels. Title. Every pictograph should have a title that fits the data. Let's understand with the pictograph given below. In this pictograph, the title helps us to know that what this pictograph is all about. Next we have symbols. Pictographs have symbols or pictures to represent the data. See that the information is represented with the help of a picture of a ball. Next is key. Pictographs have a key to show what each symbol or picture represents. It is very important to look at the key and determine how many pieces each symbol represents. We need to be very careful because not every picture or symbol represents one. In the pictograph given below, we can see the key is mentioned at the bottom. Each ball is equal to 10 students. The last part of a pictograph is labels. Let's see the second row. In the second row, we can see there are 5 balls. Since each ball represents 10 students, so 5 into 10, 50 students. And the label, that is baseball, helps us to know that 50 students love to play baseball. Therefore, labels helps us to know what this data is telling us about. Let's understand pictograph with more questions. Read the data and then answer the following questions. So let's look at the pictograph first. We can see the title on the top, that is books sold in a week. The key, which is a very important part of a pictograph. One picture of this book represents one book. Let's go ahead with the questions. How many books were sold on Monday? Let's count the number of books that were sold on Monday. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, 6
books were sold on Monday. Dear students, you need to be very careful while you're writing your answer. You need to write the complete answer, that is 6 books and not just 6. Because if you write 6, 6 is just a number. But when you write 6 books, you are telling us that there are 6 books that were sold on Monday. So please make sure that you give us the complete answer and not just the number. Let's go to the second question. On which day was the maximum number of books sold? So again, going back to our pictograph, we can see that on Wednesday the maximum number of books were sold. What is the total number of books that were sold on Monday, Wednesday and Thursday? On Monday there were 6 books that were sold. Wednesday 8 books and Thursday 4 books. So adding them up all together, we get 18 books. 6 plus 8 plus 4 is equal to 18 books. Next, how many more books were sold on Saturday than Tuesday? Since we are comparing these 2 days, we are going to do subtraction here. So Saturday 7 books were sold and on Tuesday 5 books were sold. So 7 minus 5, that is 2 books. Next, how many books were sold in a week? So to know that how many books were sold in a week, we need to add all of them together. That is 6 books on Monday plus 5 books on Tuesday plus 8 books on Wednesday plus 4 books on Thursday plus 4 books on Friday plus 7 books on Saturday, which is equal to 34 books. So 34 books were sold in a week. Last question. What is the title of this pictograph? As we know, the title is mentioned on the top of the pictograph. So we can see the title, that is Books Sold in a Week. क्वेश्चन इज यूजिंग द टैली मार्क्स प्रिपेयर टेबल. हमें टैली मार्क्स यूज करके टेबल को प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है. सबसे पहले हमें काउंट करना है कि हमें कौन सा नंबर कितने टाइम्स गिवन है. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें कौन कौन से नंबर्स गिवन है हम वो राइट कर लेते हैं. तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 एंड 10 है. तो हमने 5 को काउंट किया तो 5 नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 है. 5 नंबर हमारे पास है 2. इसी तरह 6 नंबर हमारे पास गिवन है 3. तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स को काउंट कर लेना है और उनके टाइम्स काउंट कर लेने हैं कि वो कितने टाइम्स आए हैं. उसके बाद में हमें टेबल को प्रिपेयर करना है. स्टार्ट डू क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आंसर के अंदर टेबल ड्रॉ करनी है. तो हम टेबल ड्रॉ करेंगे, 2 कॉलम्स उसमें राइट करेंगे नंबर्स एंड टैली मार्क्स का. नंबर्स हमें गिवन है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 नंबर्स गिवन है और हमें 5 कितने टाइम्स गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है. तो हम टैली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 2. 6 नंबर हमें कितने टाइम्स गिवन है, 3 टाइम्स गिवन है. तो हम टैली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 3. 7 नंबर हमें 7 टाइम्स गिवन है. तो हम क्या करेंगे, हमें जब 1, 2, 3, 4 स्लैंटिंग लाइन तो हम टैली मार्क्स स्ट्रेट लगाएंगे, लेकिन जब 5 नंबर को हमें काउंट करना है तो उसे हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके काउंट करेंगे. जो 5th नंबर आएगा उसे हम स्लैंटिंग लाइन करके ड्रॉ करेंगे. तो ये टोटल कितनी होगी, 5, फिर 6 एंड 7. तो हमें 7 नंबर कितने टाइम्स गिवन है, 7 टाइम्स गिवन है.
8 नंबर हमें कितने टाइम्स गिवन है, 5 गिवन है, तो 4 तो हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई एंड 5 फिफ्थ जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो हमने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास 8 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 9 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2 टैली मार्क्स हमने ड्रॉ कर दिए। 10 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टैली मार्क्स ड्रॉ कर दिए। नंबर सेकंड इज द नंबर ऑफ गर्ल्स students in each class of a co-educational middle school is depicted in pictograph। हमें गर्ल्स स्टूडेंट्स गिवन है, पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स से शो किए गए हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्टोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है एंड आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो हम सबसे पहले जो हमारा डायग्राम है उसे हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो वन जो ड्रॉ है, वन ड्रॉ को हमें कितनी गर्ल्स मानना है, 4 गर्ल्स हमें अज्यूम करना है। तो क्लास फर्स्ट में क्लासेस गिवन है एंड नंबर्स ऑफ गर्ल्स गिवन है। तो क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 1 जो हमें ड्राइंग है उसे हमें 4 स्टूडेंट्स मानना है ना, तो 6 4 जा कितना होता है, 24। तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 24 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड क्लास में काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो सेकंड क्लास में कितने गर्ल्स है, 20 गर्ल्स है। थर्ड में कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 4 जा इज 20, तो इसमें भी कितनी है, 20 गर्ल्स है। नेक्स्ट में 1 2 3 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ क्लास में 16 गर्ल्स है। फिफ्थ में 1 2 3, तो 3 4 जा इज 12, तो फिफ्थ में कितनी गर्ल्स है, 12 गर्ल्स है। तो हमने अच्छी तरह से टेबल को रीड कर लिया। इसमें हमें नेक्स्ट 6th क्लास में कितनी गर्ल्स गिवन है, 6th क्लास में हमें गिवन है 1 2 3 4, तो 4 4 जाए 16 गर्ल्स है। इसमें भी 7th में 1 2 3 4 जाए 12, तो इसमें भी कितनी गर्ल्स है, 12। 1 2 4 जाए 8, तो इसमें गर्ल्स है हमारी 8। तो हमने अच्छी तरह से टेबल को रीड कर लिया। उसके बाद में हमें ये आंसर्स देने हैं, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम गर्ल्स किस क्लास में है, हमें ये बताना है। तो हमने अभी पिक्चर को अच्छी तरह से डायग्राम को देखा था, तो कौन से में सबसे कम है, 8th क्लास में सबसे कम गर्ल्स है, तो हम यहाँ राइट कर देंगे क्लास 8th। नेक्स्ट है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्लास 6th में क्लास 5th से कम गर्ल्स है। क्लास 6th में कितनी गर्ल्स है, ये 1 2 3 4, 4 4 जाइज 16 गर्ल्स है क्लास 6th में। और 5th में कितनी गर्ल्स थी, इस 12 गर्ल्स थी। तो 6th क्लास में 12 से कम गर्ल्स है क्या, नहीं है ना, ज़्यादा है, तो इसमें क्या आएगा, नो। नेक्स्ट है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th में कितनी क्लास है, कितनी गर्ल्स है, हमें ये बतानी है। तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 7th क्लास, तो फर्स्ट वन जो ड्राइंग है उसे हमें 4 गर्ल्स अज्यूम करना है। तो 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 गर्ल्स है। टोटल हमारे पास कितनी गर्ल्स है, 12 गर्ल्स है 7th क्लास में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना है। फर्स्ट हम रीड करेंगे, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। फ्रूट मर्चेंट्स यानी जो फलों का व्यापार करते हैं उन्हें फ्रूट मर्चेंट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट फ्रूट बास्केट्स सोल्ड करते हैं डिफरेंट सीजन में। तो सबसे पहले रहीम कितनी बास्केट्स सोल्ड करता है, 1 बास्केट को हमें 100 फ्रूट्स बास्केट काउंट करना है। 1 बास्केट को हमें 100 फ्रूट बास्केट काउंट करना है। तो फर्स्ट वाला कितना हो गया, 100 से 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 बास्केट्स सोल्ड करता है। आगे लखनपाल कितनी करता है, 1 2 3 4 5 6 को 100 से किया तो 600 करता है। इसी तरह हमने ये सब काउंट कर लिए। उसके बाद जो हमें नीचे क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं।
हु सेल द मैक्सिमम फ्रूट बास्केट, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, बास्केट्स किसने सॉल्व की, तो सबसे ज़्यादा आपको पिक्चर में कौन शो कर रहा है, मार्टिन ना, तो मार्टिन ने सबसे ज़्यादा फ्रूट सेल किए, तो हमने यहाँ राइट कर दिया मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेल मिनिमम फ्रूट बास्केट, सबसे कम किसने किए, यहाँ हमें शो हो रहा है रहीम ने सबसे कम किए, तो रहीम हम यहाँ राइट कर देंगे। डज रहीम सेल मोर बास्केट देन जोसेफ, रहीम ने जोसेफ से ज़्यादा फ्रूट को सॉल्व किया, रहीम ने देखो कितना किया है, रहीम ने 400 सॉल्व किए हैं एंड जोसेफ ने कितने किए हैं, जोसेफ ने किए हैं 500, तो ये ज़्यादा किए हैं क्या, नहीं किए, इसलिए आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग 4 डिफरेंट गेम्स, नंबर शो है और स्टूडेंट्स गिवन, हमें गेम शो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो है, और हमें क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो 1 जो क्रॉस का साइन है उसे हमें 10 स्टूडेंट्स मानना है, इसे हमें 10 स्टूडेंट काउंट करना है। गेम्स कौन कौन से हैं, टेनिस, नेटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। टेनिस कितने स्टूडेंट खेलते हैं, 100 स्टूडेंट, नेटबॉल 70 स्टूडेंट, क्रिकेट 50 स्टूडेंट एंड बैडमिंटन 30 स्टूडेंट्स प्ले करते हैं। तो इससे हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, फर्स्ट राइट द हेडिंग पिक्टोग्राफ, हमें टेबल्स के ऊपर नेम देना है पिक्टोग्राफ एंड 1 क्रॉस को हमें कितने स्टूडेंट्स काउंट करना है, 10 स्टूडेंट्स काउंट करना है। तो हमने गेम्स राइट कर दी यहाँ पे, टेनिस, नेटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो टेनिस कितने स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं, और हमें 1 क्रॉस को 10 स्टूडेंट काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 के टेबल में 100 कौन से नंबर पे आता है, 10 पे आता है। तो हम कितने क्रॉसेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 10 क्रॉसेस ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसी तरह नेटबॉल कितने स्टूडेंट प्ले करते हैं, 70 स्टूडेंट करते हैं, और 1 जो ड्राइंग है उसे हमें 10 स्टूडेंट मानना है। तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 70 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 की टेबल में 77 पे आता है। तो हम कितने क्रॉसेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 7 क्रॉसेस को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, 50 स्टूडेंट ड्रॉ कर 50 स्टूडेंट प्ले करते हैं। तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो हम यहाँ पे कितने ड्रॉ करेंगे, 5 शेप्स ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट बैडमिंटन 30 स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या आएगा 3। तो यहाँ हम कितनी शेप्स ड्रॉ कर देंगे, 3 शेप्स ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हमें ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। वी आर डूइंग चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौरव इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर द साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास 6। गौरव को बोला गया कि वो अपनी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का शूज साइज को क्या करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो गौरव ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उसको इतने सारा ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो 6 साइज का शूज पहनता है, जो सेकंड है वो भी 6 साइज का शूज पहनता है, थर्ड वाला 5th का, 4th 6th साइज, ये साइज उसने कलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हमें नीचे क्वेश्चंस गिवन है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स यूज करके हमें टेबल प्रिपेयर करनी है। तो टैली मार्क टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने राइट किया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शो है साइज, टैली मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने शो कर दिए। साइज कौन कौन से यूज करते हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर तक की साइज यूज करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, 4 साइज के कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 4 स्टूडेंट। 5 साइज के शूज कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 4 स्टूडेंट। 6 साइज के शूज कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 8। 7 साइज के शूज कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 6 एंड 8 साइज के शूज कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 2 स्टूडेंट। तो हम टैली मार्क लगाएंगे। तो फर्स्ट है 4 स्टूडेंट, तो 4 लाइन्स हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। सेकंड भी है 4, तो 4 लाइन सीधा ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है 8, तो हम 4 लाइन ड्रॉ करके
5th लाइन को हमें स्लैंटिंग ड्रॉ करना है, तो कितना बन जाएगा 5 एंड 3 लाइन और ड्रॉ कर देंगे तो बन जाएगा 8। नेक्स्ट है 6, तो 4 लाइन स्ट्रेट एंड 1 इज स्लैंटिंग, तो 5 एंड 1 और ड्रॉ कर देंगे तो आ जाएगा 6। और 8 नंबर के साइज 2 स्टूडेंट पहनते हैं तो 2 लाइन्स हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी होगी टेलीमार्क टेबल ड्रॉ हो गई यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द साइज ऑफ शूज worn बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन से साइज के शूज पहनते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा 8 है ना, तो 8 कौन से साइज के हैं, साइज 6, तो कौन से स्टूडेंट पहनते हैं, साइज 6 शूज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पहनते हैं। नेक्स्ट है फाइंड साइज द शूज worn बाय द मिनिमम यानी सबसे कम कौन से साइज के शूज यूज होते हैं, तो सबसे कम 2, तो साइज नंबर 8 के शूज हैं जो सबसे कम ड्रॉ होते हैं। ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ फॉर इट इफ 1 शूज इज 1, तो हमें यहाँ क्या ड्रॉ करना है, पिक्टोग्राफ भी ड्रॉ करना है। पिक्टोग्राफ यानी पिक्चोग्राफ, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, जैसे इस में शो है पिक्टोग्राफ, ऊपर हेडिंग डालेंगे और 1 क्रॉस को 1 शूज बांधना है, तो साइज हमें 4 5 6 7 8 गिवन है, तो 4 साइज के कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं, 4 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 क्रॉसेस ड्रॉ कर दिए। 5 साइज के कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 4, तो यहाँ भी 4 ड्रॉ कर दिया। 6 साइज के 8 स्टूडेंट पहनते हैं, तो यहाँ पे 8 ड्रॉ कर दिया। 7 साइज के 6 स्टूडेंट्स पहनते हैं, तो यहाँ पे 6 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी। एंड 8 साइज के 2 पहनते हैं, तो 2 पिक्चर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा बन गया पिक्टोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द कलर ऑफ द वॉशिंग मशीन प्रेफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन ए कॉलोनी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। किस पिक्टोग्राफ में हमें शो किया गया है कि प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन कॉलोनी शोन, ये कलर ऑफ वॉशिंग मशीन कि वॉशिंग मशीन के कलर कितने पसंद करते हैं, तो वाइट कलर कितने पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 पर्सन को हमें 5 पीपल मानना है। ग्रे को 3 3 5 जाइज 15, ग्रीन को 1 2 3 4 5 6 6 5 जाइज 30, ब्लू को 1 2 2 5 जाइज 10 पीपल पसंद करते हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर देना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रेफर्ड शूज वाइट कलर को कितने पीपल्स पसंद करते हैं, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, या तो इन्हें 5 टाइम्स ऐड कर दो तो क्या आएगा 25, या क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 5 को 5 से, तो भी क्या आएगा 25 आएगा। तो जैसे आपको पसंद है, ऐड करना है तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल लाइक ग्रीन कलर कितने पीपल पसंद करते हैं, तो इसी में भी हमें अगर 5 5 5 करके ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, अगर हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 6 कर देंगे, तो 30 पीपल पसंद करते हैं किस कलर को, ग्रीन कलर की वॉशिंग मशीन को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का हमारा 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल 1 कॉलम इज डन फॉर यू। इसमें टैली मार्क्स हमें ड्रॉ करने हैं। अश्विन कितने हैं, 18 हैं, तो हमने क्या किया 4 स्लैंटिंग लाइन लगाई और फिर 5 स्लैंटिंग लाइन होगी हमारी, उसके बाद ने 5 और ड्रॉ किया, फिर 5 और ड्रॉ किया, तो 15 हो गए। 3 और है तो 3 हमने और ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितने टैली मार्क्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, 18 टैली मार्क्स हमने ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार 9 है, तो हम यहाँ पे 9 जो टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, तो 4 हमने स्ट्रेट ली एंड 5th को हमने स्लैंटिंग लिया, तो 5 बन गया। 5 एंड 4 हमने और ड्रॉ कर दी, तो टोटल होगी 9। आगे है ईशान शर्मा के ड्रॉ किए हुए हैं इन्होंने, 13 है, तो 5 और 5 10, 10 और 3 is 13। आगे है जाहिर खान के 17 है, तो 5 5 10 5 15, 15 एंड 2 is 17, तो हमने 17 जो टैली मार्क्स है वो ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इफ वन स्माइली इज रिप्रेजेंट बाय 5 स्टूडेंट। अगर 1 स्माइली को हम 5 स्टूडेंट अज्यूम करते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय, तो कितने स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हैं 4 है ना, तो 4 टाइम हम 5 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 20 स्टूडेंट, क्योंकि 1 स्माइली को हमें 5 स्टूडेंट्स मानना है। नेक्स्ट में क्या है 5 + 5 + 5 इज 15 स्टूडेंट,
नेक्स्ट में कितना है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इज 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Given below is the table showing the favorite summer vacations activity of student of class third. Use the information to draw pictograph. Pictograph हमें draw given activity given है हमें swimming, reading, craft, hiking and sky and sightseeing. Number of student है 45, 30, 25, 15 and 60 and one smiley को हमें 5 स्टूडेंट ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिख ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। स्विमिंग कितने स्टूडेंट्स करते थे 45, तो 45 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 9 स्माइली यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्या है रीडिंग, तो रीडिंग कितने स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं रीडिंग के लिए। तो रीडिंग को 30 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 6, तो हम 6 स्माइली यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है क्राफ्ट की कितने हैं 25 स्टूडेंट है, तो 25 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 के टेबल में 25 5 पे आता था, यहाँ कितने स्माइली ड्रॉ करेंगे 5 स्माइली। नेक्स्ट है हाइकिंग में कितने हैं 15, तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3, तो 3 स्माइली हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है साइट सीइंग के लिए कितने स्टूडेंट है 60, तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे 12 स्माइली। इसी तरह से हमें ये पूरी डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज को अपनी बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो बुक वर्क है वो बुक में करना है, जो बुक वर्क नहीं है उस सब को हमें नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।